Hi students, welcome again in third episode of Creative and Critical Thinking. In this video I have taken animal husbandry as my topic, and this topic I have taken from chapter number 3 of class 7 science named Fiber to Fabric. बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं कि सीसीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास स्पेसिफिक ज़रूरी हों ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके कंटेक्स्ट के ऊपर। ये डिपेंड करता है 3 लिटरेसीज़ के ऊपर: साइंटिफिक लिटरेसी, मैथमेटिकल लिटरेसी एंड reading literacy. So in the scientific literacy, animal husbandry topic I have chosen, and this video can be utilized by student of all the classes from class 6 to class 10th. Okay, so let us start with the context. The branch of science which deals with the study of various breeds of domesticated animals and their management for obtaining better products and services from them is known as animal husbandry. The term husbandry derives from the word husband, which means one who takes care, and animal husbandry means taking care of animals, isn't it? So when it cooperates the study of proper utilization of economically important domestic animals, it is called livestock management. Okay, अब एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे एनिमल हो गए। जब हम ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो हमें सशक्त करते हैं, हमारी मदद करते हैं, जो हमारे लिए आर्थिक रूप से बेनिफिशियल हैं, तो ऐसे एनिमल्स की जो जब हम इसको मैनेजमेंट करते हैं तो उसको हम लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं. डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड, okay, different category of animals like wild animals, those that breed better when they are free than they do when they are captivated. Okay, तो वाइल्ड एनिमल्स फ्री एनिमल्स होते हैं और इसीलिए उनकी जो अडेप्टिबिलिटी है, इनकी जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं. एंड दे हैव नो कॉमन यूज़ फॉर ह्यूमन. लेकिन वाइल्ड जो वैराइटीज़ होती हैं उसको हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए उसका एक जो यूज़ है वो उतना ज़्यादा नहीं है. ओके, बल्कि मैं कहूँगा कि कोई यूज़ ही नहीं है. जैसे लाइन, टाइगर, राइनोसेरॉस, डियर, इसका हमारी डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं है. एंड दोज विच आर कॉट फ्रॉम द वाइल्ड एंड ट्रेन टू बी यूजफुल टू ह्यूमन इन सम वेज. तो कुछ ऐसे भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग कैप्चर करते हैं और फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि एलिफेंट, चिंपैंजी, गोरिल्ला, याक एक्सेट्रा. ये वाइल्ड एनिमल होने के बावजूद डोमेस्टिकेटेड किए जा सकते हैं और इससे हमें बेनिफिशियल भी है, इससे हमें जो है बेनिफिट भी है. द कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर डॉग, हॉर्स, काऊ, शीप, बफलो, फाउल. तो ये सभी कभी ना कभी ये वाइल्ड एनिमल्स थे जिन्हें बाद में ह्यूमन बींग्स के द्वारा डोमेस्टिकेट किया गया, पालतू बनाया गया. द इम्पॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी. Domestic animals are categorized into following functional groups. One is milk giving animals like cattle, buffalo, goat, sheep, etc. And the second category is draught, used for load bullock, horse, donkey, mule bearing, etc. and animal camel, elephant, yak, etc. तो इसको नॉर्मली हम लोग लोड केयरिंग के लिए यूज़ करते हैं. थर्ड इज फाइबर, हाइड एंड स्किल यील्डिंग एनिमल्स. जैसे इसमें आते हैं शीप, गॉट, कैटल, बफलो, कैमल एक्सेट्रा. फिर जो फोर्थ कैटेगरी है वो है मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल, जैसे फाउल है, डक, गोट, बफलो, पिग. तो इनसे कुछ एनिमल से हमें मीट मिल रहा है और कुछ एनिमल से एग्स मिल रहे हैं. सो नेक्स्ट इज milk and meat yielding animals. So depending upon the availability and regional consideration, different animals are reared for the purpose of yielding milk and meat in India.
Now, the very important information is there in this context that India is world's largest producer of milk. Majority of milk consumed is also in liquid form in India. Over 53% of the milk produced in India is from buffalo, and majority of the milk processing plant in country depend on the buffalo milk. National Dairy Development Board NDDB is the main agency behind the cooperative movement in India. So India is now seeking joint ventures and financial participation from the private sector, including forest investment for the production of milk and milk product in India. Cattle mainly includes cow, bull, oxen, goat, sheep, etc. And females of species provide milk, which in turn contribute animals' protein to the diet of people. While the female species of these cattle are used for milk and male species play important role, जैसे खेती में, बोझा ढोने में, etc. etc. Now, animal husbandry is important. Animal husbandry plays important role in the agriculture economy by providing labor, meat and hide बोले तो जो हमारी स्किन होती है एनिमल्स की उसे कहते हैं खाल. Milk itself is taken in many forms like ghee, curd, butter, cheese. The excreta of these animals is used as manure and biogas production. So बहुत सारे फायदे हैं. What is breed? A breed is a group of one of the species of animals which have the same descent and are similar in body, shape, size and structure. And categories of important breeds, there is following three categories: Indian breed, exotic breeds, improved breeds. जो exotic breeds होते हैं ना, वो imported breeds को कहा जाता है जिन्हें हम बाहर कंट्री से मंगवाते हैं, जैसे कि होल्स्टीन है ना, फ्रीसियन, जर्सी, स्विस. ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं गाय की, जिसे फॉरेन कंट्रीज से हमारे कंट्री में इंपोर्ट किया गया. इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ इंडियन कैटल. Certain improved breeds have been developed by making the cross between the two desired breed. अब ये जो improved breeds कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बता दूं. जब हमारी इंडिया की लोकल जो हमारी या वाइल्ड जो वैरायटी होती है, जो दूध कम देती हैं लेकिन उनकी उस परिस्थिति में एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती, फिज़िकली वो स्ट्रांग होते हैं, जब उसकी ब्रीडिंग अब्रॉड से लाए गए काऊ के साथ की जाती है, ओके, या उस ब्रॉड फॉरेन कंट्री से लाए गए कैटल के साथ जब उसकी ब्रीडिंग की जाती है तो हमें इम्प्रूव्ड ब्रीड जो है मिल जाती है. द क्रॉस बिटवीन साहिवाल एंड फ्रेसियन वेराइटी हैज़ बीन नेम्ड एज फ्रीवॉल and Curran Swiss. Okay, this is another important and improved breed for milk production in large quantities. Some Indian breeds, their milk yield and distribution, okay, some Indian breeds and their milk yield and distribution. यहाँ पे कुछ मुझे कमी लग रही है इस सेंटेंस, इस कंटेक्स्ट में कुछ मिसिंग है. ओके, ये जो हमारे इंडियन ब्रीड साहिवाल एंड रेड सिंधी हैं, ये हाई यील्डिंग एनिमल्स हैं, हाई यील्डिंग कैटल्स हैं, हमारे इंडिया की हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज लाइफ स्टॉक सो इम्पॉर्टेंट इन अवर इकोनॉमी. लाइफ स्टॉक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशो कल्चरल रोल्स फॉर वेल बीइंग इन द रूरल हाउस होल्ड्स. हमारे जो भी रूरल विलेजेस हैं वहाँ की पूरी इकॉनमी लाइफ स्टॉक पे डिपेंड करती है. फूड सप्लाई, इनकम दूध बेच के आ रही है, खेतों में बैल जोते जा रहे हैं, है ना, उनसे जो खाद मिल रही है उससे सब्जियां उगाई जा रही हैं, उससे खेती की जा रही है, उससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. ये सॉइल फर्टिलिटी की बात मैं कर चुका हूँ. ट्रांसपोर्ट, उससे बैलगाड़ियाँ चल रही हैं, ओके, उससे सामान ढोने में मदद मिल रही है. तो ये जितने भी जो हम देख सकते हैं कि जो विलेजेस में लाइफ स्टॉक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ दोज रेसिडेंट, okay, peoples. Now there are certain questions that I'm going to discuss with you all.
So let us start with question number 1. So let us start with the questions. The study of various animals of domesticated animals and their management for obtaining better products and services from them. It is known as animal husbandry. Question number 2. On the basis of utility, domestic animals are categorized into how many functional groups? तो इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए कहा गया, हमने ऊपर कंटेक्स्ट में पढ़ा था. नंबर 1, एक तो होते हैं दूध देने वाले एनिमल जैसे कैटल, बफलो, गोट, शीप. दूसरे होते हैं ड्रॉथ, यूज फॉर द लोड, जैसे कि बुलक हॉर्स, डंकी, म्यूल, कैमल, एलिफेंट. तो इनको हम बोझा ढोने के लिए भी यूज़ करते हैं. तीसरे कैटेगरी में आते हैं फाइबर एंड हाइड एंड स्किल यील्डिंग एनिमल्स, जिनसे हमें ऊन या खाल या स्किन मिलती है, जैसे शीप, गॉट, कैटल, बफलो, कैमल एट्सेट्रा. और चौथे वैरायटी में आते हैं मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल, जैसे कि फाउल, जिसमें मतलब मुर्गियाँ हो गई, डक हो गए. मीट देने में गोट, बफलो, पिग, इनको यूज़ किया जाता है. तो इसके बाद आई एम शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. एक कैटेगरी और छूट गई है ऊपर, मिल्क एंड मीट यील्डिंग एनिमल्स. ये भी होते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है. तो आपको पता ही है, काऊ से दूध मिलता है, बफलो से दूध मिलता है. ओके, एंड नाउ शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ एनिमल हस्बेंड्री इज गोइंग टू इंक्रीज इंडियन रूरल इकोनॉमी. देखिए, इसमें जो नेशनल हमने कंटेक्स्ट में पढ़ा था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. ओके, इट इज़ द मेन एजेंसी बिहाइंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया. तो होता क्या है कि विलेजेस में, बहुत सारे विलेजेस हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने कैटल्स पाले होते हैं. तो उन सभी के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई दी जाती है, जिसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का होता है, कुछ जो है लोकल्स का होता है. इस तरह से जो मिला जुला एक कॉम्बिनेशन जब होता है गवर्नमेंट और उसके जो लोकल्स होते हैं, तो उसको हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं. तो यहाँ पर NDDB इज़ द मेन एजेंसी बिहाइंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया. सो इंडिया इज़ नाउ सीकिंग ए जॉइंट वेंचर इन फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, and it is also including foreign investment for the production of milk and milk products in India. So it's very enthusiastic approach. And animal husbandry provides self employment to million of household in rural areas. Okay, तो उनकी तो इकोनॉमी ही, जो उनका जीवन यापन ही जो है एनिमल हस्बेंड्री पे रहता है. तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. तो सर्टन improved breeds have been developed by making a cross between two desired breed. Mention some example. तो हमें यहाँ पे कुछ ब्रीडेड एनिमल्स की जो है एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं. एंड as I told in my context that Holstein, Holstin, okay, Holstein and Friesian. This is one of the क्रॉस. ओके, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग होती है. जर्सी गाय होती है, JERSEY, जर्सी काउ. दिस इज अनदर. देन रेड सिंधी है, रेड SINDHI, रेड सिंधी. उसके बाद करन स्विस. ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं काउस की, जिनसे कि जिनको क्रॉसिंग करके बनाया गया है, ब्रीडिंग करके बनाया गया है, और काफ़ी अच्छा जो है ये प्रोडक्शन देते हैं मिल्क का. नेक्स्ट इज WHO states that majority of the Indians are not taking protein rich diet. Would you recommend some protein rich items? तो प्रोटीन मतलब किन एनिमल्स में जो है प्रोटीन, या कौन से ऐसे एडिबल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये पूछा गया है. सो 1 इज़ लीन मीट, सेकेंड इज़ पोल्ट्री, थर्ड इज़ फिश, प्रोटीन होता है. एग्स में प्रोटीन होता है. डेयरी मिल्क लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट, इन सभी में प्रोटीन
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है. तो दिस context is now complete, and till I develop my fourth episode, I want you all to take care of your health, stay fit, stay fine, and very best of studies. Thank you all.